Students, in this segment, we understand the law of DMU, means diminishing marginal utility. So, first one, explain the law in economics. Law of economics depends upon the human being. Human being means human nature, human characters, human tendency, etc. हम लोग इकोनॉमिक्स की कोई भी लॉ देखेंगे सो वो लॉ वहाँ पर ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं. So, as a same way, law of diminishing marginal utility. First, explain introductions. Introductions. This law was first proposed by the Professor Gaussen and then explained in detail and popularized by the Professor Alfred Marshall. So, what about explain in his book Principle of Economics and explain in 1890. Secondly, law of diminishing marginal utility is depends upon the common consumer's behavior. So what about the common consumer's behavior? वहाँ पर in explain या फिर it says that any person's one time different needs, but all needs cannot be satisfied at a specific time. For example, I have a car, I have furniture, I have flat, etc. जैसे भी वहाँ पर उसे कार, फ्लैट, फर्नीचर चाहिए, वो सबके सब नीड्स एक ही टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकता. सो क्या कर सकता है? इट मीन्स अ पर्टिकुलर वहाँ पर टाइम्स कंप्लीटेड वन नीड्स. एक ही वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक टाइम में वो अपनी वन नीड्स को कंप्लीट कर सकता है. विथ वहाँ पर DMU डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेस. यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? वो कम होती जाती है. और वो कम क्यों होती है? वहाँ पर एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. इंटेंसिटी मीन्स अर्जेंसी. फॉर एग्जाम्पल्स वहाँ पर मोर अर्जेंसी मीन्स ग्रेटर यूटिलिटी दैन लेस अर्जेंसी मीन्स डिक्लाइन द यूटिलिटी. सो अंडरस्टैंड all of student law of diminishing marginal utilities introduction. Second, statement of the law. Statement of law means vidhan. According to Professor Alfred Marshall, other thing being constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in the stock with every increase in the stock that he already has. So Professor Alfred Marshall says that first one, consumers derive from the successive unit of commodity. Means वहाँ पर experiment of any commodities to continually consume the commodity one by one consumptions of the commodity. So that's result diminishing means goes on the diminishing marginal utility. तो आपको उसका result क्या मिलेगा? Marginal utility आपको कम दिखाई देगी. With एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक. जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि जैसे ही उसका वापस स्टॉक बढ़ेगा उसके साथ में यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी आपको कम दिखाई देगी. सो वहाँ पर नेक्स्ट वन एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट वन पॉइंट है रैशनैलिटी. लॉ ऑफ DMU इट इज एज्यूम दैट वहाँ पर कंज्यूमर्स इज a rational person. Rational persons means its behavior is a normal. So normal behavior means वहाँ पर rational person. So for examples वहाँ पर it gets maximum satisfactions but no any rational persons. जैसे for example drunkards, for examples mental person. So not वहाँ पर explain the maximum satisfaction. So law of DMU क्या चाहता है? जो वहाँ पर कोई भी पर्सन्स रहेगा, जो वहाँ पर पर्सन्स विचारी है और उसका वहाँ पर एक अजम्पशंस क्या है या फिर वहाँ पर उसका लास्ट वन वहाँ पर सेटिस्फिकेशंस ये उसका एम्स रहेगा, उस पर्सन को इन्होंने एज्यूम किया है. सेकंड है कार्डिनल मेजरमेंट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इट इज एज्यूम दैट कार्डिनल मेजरमेंट बट एक्चुअली वहाँ पर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर. वाई? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. But Professor Alfred Marshall understand the law of DMU explain the cardinal measurement. Cardinal measurement means numerical measurement, for example mathematical operations,
and mathematical operations are easily understand to know and compares 1 2 3 commodities. सो हम लोग वहाँ पर कार्डिनल्स मेजरमेंट की बात देखेंगे. सो कार्डिनल्स मेजरमेंट में नंबर्स आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट से आपको यूटिलिटी कितनी मिली है, सेकंड से कितनी मिली है, तो ये आपको किस चीज़ के लिए मदद करेगा? टू नो एंड हेल्प द कंपैरिजन ऑफ द यूनिट, मीन्स एज्यूम द कार्डिनल मेजरमेंट. थर्ड वन पॉइंट है होमोजेनिटी. Law of DMU explain all units of commodity consumes are exactly same, means exactly homogeneous या फिर exactly identicals. For examples in size, shape, color, taste, etc. So any experiment of the any commodities, so explain same content, size, shape, color and taste. For examples, apple. Experiment of the apple, 1 2 3 4 5 6 apple, means its size, its shape, its color, its taste is a same. But actually no one same any content, so law of DMU is not applicable. आप लोग वहाँ पर उसमें से कुछ भी चेंजेस कर देते हैं कि जैसे वहाँ पर एप्पल्स की बात हम लोग करेंगे, एप्पल्स वहाँ पर क्या है टेस्ट में अलग अलग है, तो उस टाइम में ये लॉ सही नहीं होगा. तो हमें क्या करना है, वही एप्पल्स की टेस्ट, कलर, साइज, शेप ये सब सेम होना चाहिए. तो इसके लिए वहाँ पर होमोजेनिटी को एज्यूम किया जाता है. फोर्थ वन पॉइंट है कंटिन्यूटी. Law of DMU explain the continuity, means it is assumed that the consumptions should be in a quick succession. This implies that there should not be any break in the act of consumptions. वहाँ पर क्विक सक्सेशंस का मतलब क्या है? सो एक्सप्लेन वहाँ पर देयर आर नो ब्रेक इन द एक्ट ऑफ कंजप्शंस. आपको वहाँ पर क्या नहीं करना है? सो वहाँ पर कंजप्शंस के बीच में ब्रेक लेना नहीं है. सो वहाँ पर कंटिन्यूसली वन बाय वन कमोडिटी कंज्यूम्स एंड द लॉ इज अ ट्रूथ, बट the law will not operate if units of goods या फिर units of commodities are consumed at a great intervals. आप लोग वहाँ पर एक बड़ा इंटरवल्स लेते हो, बड़ा ब्रेक लेते हो, तो ये वहाँ पर सही नहीं होगा. वही एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स आप लोग फर्स्ट वहाँ पर एप्पल को कंज्यूम करते हो, उसके बाद आप लोग 1 घंटे के बाद सेकंड एप्पल्स को कंज्यूम करते हो, तो आपको यूटिलिटी डिमिनिशिंग नहीं दिखेगी, तो यूटिलिटी क्या दिखेगी? इंक्रीज दिखेगी. तो उस टाइम में ये लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो हमें क्या एज्यूम करना है? कंटिन्यूटी. फिफ्थ वन पॉइंट इज द रीजनेबिलिटी. रीजनेबिलिटी, लॉ ऑफ DMU, इट इज एज्यूम दैट रीजनेबल मीन्स रीजनेबल साइज. फॉर एग्जाम्पल्स वहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर, कप ऑफ टी, यूनिट ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा. दिस मीन्स the size of the unit must be normal or adequate, so neither big nor small. so क्या होना चाहिए? जो भी आप लोग वहाँ पर यूनिट्स ले रहे हो वो वहाँ पर एक ऑप्टिमम साइज़ होना चाहिए, एक नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए. जैसे हम लोग वहाँ पर चाय के लिए जो वहाँ पर हमारा कप यूज़ करते हैं, पानी पीने के लिए जो ग्लास यूज़ करते हैं, सो दिस एग्जाम्पल्स आर द नॉर्मल साइज ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन द रीजनेबिलिटी मीन्स सुटेबल साइज. It means they are not taken in a small quantities like drop or a spoon etc. But वहाँ पर आपको क्या नहीं करना है? Not explain any experiment, explain the small quantity. For examples वहाँ पर a thirsty persons and to consume the waters वहाँ पर use of the spoon. So this times the law is not applicable, means DMU it is explain the reasonability. वहाँ पर explain the suitable size. Next one point means sixth one point is a constancy. First one explain the continuity, means continue, there is no gap, and again continuous, it is a constancy. So which factor is a constancy? For examples वहाँ पर taste, preference, income, habit, choice, like, dislike.
हमें वहाँ पर ये जो फैक्टर्स है, ये जो घटक है, इनमें क्या नहीं होना चाहिए, सो वहाँ पर चेंजेस नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का इनकम कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हैबिट में चेंजेस नहीं होने चाहिए, टेस्ट कुछ पसंद या फिर कुछ नापसंद नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी वहाँ पर जो फैक्टर्स है या क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। एंड विथ वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज शुड बी रिमेन कांस्टेंट, उसके साथ में पैसे की वहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी मीन्स द लॉ विल नॉट होल्ड गुड इफ देयर इज अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द कमोडिटी। वहाँ पर ये जो लॉ है, ये लॉ आप लोग आपका एटीट्यूड्स वहाँ पर चेंज कर देते हो तो उस टाइम में ये लॉ क्या होगा, सही नहीं होगा। मीन्स नॉट होल्ड गुड इफ देयर इज अ वहाँ पर एटीट्यूड्स या फिर चेंज द इनकम। सो एक्सप्लेन द कांस्टेंट फैक्टर्स। Next one point is a divisibility. Divisibility means divide. Law of DMU, it is assumed that any experiment of any commodity, so this commodity explained in a divisible small quantities, means it can be acquired in a small quantities. For examples, फ्रूट या फिर फॉर एग्जाम्पल्स वाटर, फॉर एग्जाम्पल्स रोटी एक्सेट्रा। बट हाउस, कार या फिर टीवी, सो ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उनके वहाँ पर स्मॉल पार्ट नहीं बना सकते। बट जो बाकी कंटेंट है, जैसे हम लोग पानी को ग्लास में वहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, मिल्क को कर सकते हैं, किसी फ्रूट को कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लॉ ऑफ DMU इज एज्यूम दैट डिविजेबल कमोडिटी, जो भी कमोडिटी हम लोग ले रहे हैं वो कमोडिटी कैसे है, डिवाइड होने वाली है स्मॉल क्वांटिटी में। एंड लास्ट वन पॉइंट इज द सिंगल बॉन्ड. Single bond means law of DMU, it is assumed that a goods has only one use. What goods? So experimental goods. जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंटल गुड्स ले रहे हो उस गुड्स का वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ही यूज़ होना चाहिए। वहाँ पर यूटिलिटी ऑफ दैट गुड डिपेंड्स एंटायरली ऑन दिस स्टॉक। सो वहाँ पर उसकी यूटिलिटी कैसे रहेगी, उसके स्टॉक के ऊपर से रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप लोग मिल्क ले रहे हो, सो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट ऑफ द मिल्क मीन्स टू कंज्यूम फर्स्ट, वहाँ पर मिल्क मीन्स वहाँ पर जैसे आप लोग कप ऑफ मिल्क, सेकंड कंज्यूम कप ऑफ मिल्क, थर्ड कंज्यूम कप ऑफ मिल्क। बट वहाँ पर अदर पर्सन्स एक्सपेरिमेंट ऑफ द लॉ, फर्स्ट वहाँ पर टू कंज्यूम अ कप ऑफ मिल्क, देन सेकंड अ कप ऑफ टी मीन्स एडिशनल 1 cup milk tea and to consume the milk means consume the tea, then third one to consume the coffee, additional one again milk. So वही वो क्या कर रहा है कि पहले टाइम में वहाँ पर 1 कप मिल्क ले रहा है, उसके बाद वही एक सेकंड कप मिल्क ले रहा है, वो चाय में ऐड करके पी रहा है, थर्ड टाइम में थर्ड कप मिल्क का ले रहा है, वो कॉफ़ी में ऐड करके पी रहा है। सो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक वहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, अ सिंगल बॉन्ड सो विच इज़ कम्प्लीटली सुटेबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो उसी स्पेसिफिक टाइम में उसका एक ही यूज़ होना चाहिए। वही हम लोग एप्पल्स के बारे में भी दे सकते हैं। जैसे एप्पल्स का यूज़ आप लोग एप्पल खाने के लिए कर रहे हैं, सो कट करके एप्पल खाने के लिए, नहीं तो आप लोग एक मतलब फर्स्ट वहाँ पर एक एप्पल्स कंज्यूम करोगे, सेकंड टाइमिंग में उसका जूस बना के पिएगे, तो वहाँ पर ये लॉ सही नहीं होगा, मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। सो वहाँ पर assumptions, it is important part of the law of diminishing marginal utility. And then importance part of the law of diminishing marginal utility means schedule and diagram. So वहाँ पर next one show in your screen, वहाँ पर table means वहाँ पर schedule and diagram. So first one explain the table. So in the above table explain unit of X commodity and secondly marginal utility. So when first unit of commodity consumptions, then marginal utility is 10. When second unit of commodity consumptions, marginal utility 8.
then third unit marginal utility 6, fourth unit marginal utility 4, fifth unit marginal utility is 2. It means increase in the stock of commodity 1, 2, 3, 4, 5. That's result diminishing marginal utility 10, 8, 6, 4, 2. But one time means 6th unit of commodity consumptions, no more additional मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पर आप लोगों को कोई मार्जिनल यूटिलिटी ऐड नहीं दिख रही है, मीन्स वहाँ पर जीरो मार्जिनल यूटिलिटी. एंड जीरो मार्जिनल यूटिलिटी इट इज़ एक्सप्लेन द मैक्सिमम सेटिस्फिकेशंस. बिफोर वहाँ पर एक्सप्लेन मैक्सिमम सेटिस्फिकेशंस, वहाँ पर एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी. हम लोगों ने वहाँ पर टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप में भी देखा था. वहाँ पर जिस टाइम में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है तो उसे कहा जाता है मैक्सिमम सेटिस्फिकेशंस. देन एडिशनल 1 यूनिट मीन्स व्हेन द 7th unit of commodity consumptions marginal utility is negative. Negative means dissatisfactions. So it is assumed that the law of diminishing marginal utility, it understand the given table. Given table means 1 to 7 unit. And then explain the marginal utility is a diminishing. 1 times marginal utility is a 0. And then last one is a marginal utility is a negative. But actually in a real life, so मतलब most of the peoples are consumes last level is the 0 means maximum satisfactions. In rarely use of the negatives level, in rarely explain the negative level, but it is assumed that the DMU. हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि बहुत रेयर वहाँ पर कोई इंसिडेंट रहेगा, उसमें ही क्या हो जाता है तो वहाँ पर ये निगेटिव्स लेवल तक लोग जाते हैं. एक्चुअली बाकी टाइम में वहाँ पर लोग अपने सेटिस्फिकेशंस लेवल्स में 0 लेवल को कंजप्शन स्टॉप कर देते हैं. अभी हमें ये समझने के लिए एक एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स एक आइसक्रीम का है एग्जांपल्स देखेंगे. आइसक्रीम में जैसे हम लोग वहाँ पर 1 by 1 आइसक्रीम को क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं. सो 1 by 1 आइसक्रीम को कंज्यूम करने के बाद उस टाइप में उसका रिजल्ट क्या हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल्स व्हेन X person consume first ice cream. So what about these results? So you have more desires and then want and give the satisfactions. वहाँ पर first unit of commodities means first unit of the ice cream. So उसका result क्या हो गया. उस आइसक्रीम मतलब he want given the satisfactions, its desire and then its result is a maximum satisfaction. जब वो आप फर्स्ट आइसक्रीम का कप लेता है तो वो उसे चाहिए. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस टेबल के लिए हम लोग एक एग्जांपल्स देखते हैं. X person consume first unit of ice cream get more utility means it desired its want and get the more satisfactions. Then after when he consume second unit of ice cream, you again desire some of the utility because it is not more or equal first unit of commodities ice cream. Continuously third one unit of commodities consumptions less marginal utility comparatively first and 2. Again fourth unit of commodity consumptions means next one लेस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बिकॉज वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ऑन. 1 times no more additional 1 unit means 0 get the maximum satisfactions. So after then no more additional 1 unit because get the maximum satisfactions. So simply law of diminishing marginal utility means additional benefit or the additional satisfactions but increase in the stock of commodity with diminishing marginal utility. हर एडिशनल पॉइंट के साथ में क्या होता है ये बेनिफिट भी बढ़ता है बट ये बेनिफिट क्या हो रहा है कम दिखाई दे रहा है. ऐसे कई एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं. जैसे हम लोग वहाँ पर किसी के शादी में गए हैं या फिर हो सकता है कोई और एग्जांपल्स जैसे किसी की पार्टी है. सो उस टाइम में भी हम लोग वहाँ पर देखेंगे तो एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स पार्टी में उसने फर्स्ट डिश ले लिया नॉन वेज का
जैसे यूटिलिटी अच्छी मिल गई, ज़्यादा मिल गई, सेकंड से उससे कम मिल गई, थर्ड से उससे कम मिल गई, अभी वहाँ पर फोर्थ के टाइम पे वो ज़ीरो पर आ गया। सो अभी उसे लग रहा है कि बस अभी उसे क्या होना चाहिए, बस करना चाहिए, बट अपने फ्रेंड्स के वहाँ पर मतलब फ्रेंड्स की वजह से वो और एक डिश ऐड कर देता है, तो उसकी वजह से यूटिलिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये जो कॉमन एक्सपीरियंस है मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सपीरियंस एवरी पर्सन। सो एनी कंजप्शन जैसे थर्स्टी वाटर या फिर वहाँ पर हंग्री पर्सन्स, रीड ऑफ बुक, सॉन्ग, पिक्चर्स एक्सेट्रा। सो ऐसे कई कमोडिटी या फिर हर कंटेंट्स किसी भी चीज़ के लिए हम लोग ये अजम्पशंस को वहाँ पर कंडीशंस में रख के इस लॉ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ डायग्राम मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डायग्राम। इन द above diagram, x axis indicate units of commodity and y axis shows marginal utility. First one, mu different point plotted on the graph. यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहे हैं, mu point means different point of mu plotted on graph and related x and y axis means mu goes on diminishing with every increase in the stock. 1 to 7 increase in the stock and diminishing utility means 10 to minus 2. 1 point marginal utility is 0 means marginal utility curve touch on x axis. जिस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी उस टाइम में ये mu कर्व x एक्सिस को टच करेगा. आफ्टर एडिशनल 1 यूनिट मीन्स 7 मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव एंड ड्रॉ बिलो द x एक्सिस. यहाँ पर आपको ये x एक्सिस के नीचे दिखेगा. तो इस तरीके से वहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से टेबल एंड डायग्राम उसके साथ में अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU ये इम्पॉर्टेंस है और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो हम लोग वहाँ पर इस तरीके से टेबल, डायग्राम, स्टेटमेंट और वहाँ पर अजम्पशंस. थैंक यू वेरी मच.